So good evening, people. Am I audible to all of you? Can everyone hear me, see me? Okay. Okay. Good evening, everyone. People, today I thought of taking a session in which we do some analysis of last year's paper and see exactly what are the areas that we have to plan, because it is very important that when you're preparing for an aptitude test, your focus has to be in the right areas. And when I say right areas, it means areas in which you can score. It's just like your board exams or university exams, in which you know that there are 10 topics. But if out of 10 topics, there are three from which 80% of the questions come, then you can't ignore those three topics. You can leave the other seven, but you can't ignore those three topics. Something similar happens in your IPMAT exams as well. So once you go through the latest question papers, when I say latest question paper, it means the one that came in the previous year. If you go 4-5 years back, I think those questions paper may not be that relevant, because every exams keep on changing. So every year you will have new set of questions, new difficulty levels, new paradigms. So sometimes going by very old papers may not always be a practical advice. Okay. So today I am doing a similar thing. Today I am going to open the IPMAT 2022 paper, and I will show you the kind of questions that came. And the paper that I'm opening is IPMAT paper of Indore. So I will just share the page here. I have opened it somewhere here. Just a moment. Let me see. Just a moment. All of you can see the paper now. Is it visible to everyone? Yes, Everyone can see, right? So I'll just scroll it to the right place. This is the paper that came in 2022. It was shared by someone on the group. So 30 questions came from, I think, your quantitative essay. I don't know what is essay, quantitative section. And you will see that from the verbal section, almost, I think 40 questions, 45 questions. So look at the weightage. In quant, you might get very good score. But if you look at the verbal section, then there are 45 questions in the verbal section. 45 questions basically means that there is always the sectional cutoff, which you have to clear. And then there is an overall cutoff. So if you want to reach overall very high score, you have to score well in the verbal section. Same happens with CAT people as well. In CAT also, you can't mess with your English language. So looking at the way things are going, looking at the way that the exams are shaping, verbal section is very important. It's becoming very, very important, because critical thinking is something that is tested in almost all the major exams of the world. Okay. So as you see, there are 45 questions. Now we have to see that these 45 questions come from which area. So if I go with the analysis of I think RC is not playing that big a role. The 30 questions come from RC and 15 comes from BA. In fact, in this, there are only 2 RCs. So the paper starts with RC. There is the first RC here. So it starts with the RC section, RC paper. RC's section 1, 2, 3, 4, 5, 6. And then you have 7, 8, 9, 10, 11, 12. So there are just 12 questions, which makes it little more than 25% of the paper is RC. Now 25% of the paper means not very high weightage is given to RC. So we have to understand that what are the contents of the other questions. So as I discuss the paper pattern with you, I will keep on writing कि भाई अपना focus area क्या होना चाहिए. Accordingly, मैं अपने sessions भी plan करूँगा. I don't want my students to study something else which is not deciding the fate of the exam. So we have RC 12 questions, correct? Basically, you have 2 passages. It's not that this would be constant. You might have 3 passages this year.
and the proportion might go higher. But let's go by last year and see, okay, chalo bhai itne questions hain. Now what next? Now look at this kind of question. I call this as a vocabulary based question. This is not something that you can always categorize as exactly kya bolte hain. Some of the best spies. So the question says, complete the following sentences by choosing the most appropriate word phrase. Now this could be just logical filling of the things. Logical filling of the things. This is what I can call it as. Some of the best spies take guise of innocuous secretaries or researchers and are able to send large amounts of information to their heads of espionage as they are. क्या हो सकता है? Sir, hiding in plain sight. Hiding in plain sight. Plain sight. Okay. Hiding within everyone's sight. Hiding from watchful eyes. Hiding documents very carefully. Now, this is just appropriate filling, you know. I mean, I can't even say कि इसको कैसे पढ़ाएंगे. This is just word usage, which some of the best spies take guise of innocuous secretaries or researchers and are able to. So they are innocuous secretaries. Now, secretary of a prime minister or secretary of a minister or an important personnel will have access to everything. So if I have a personal secretary, I think she or he would know everything about me, about my business, about my nature. So the best spies take the guise of innocuous secretaries or researchers and are able to send large amounts of information. That means they have the access to information to their heads of espionage as they are hiding documents very carefully, hiding within everyone's sight, and hiding from watchful eyes. So I think hiding in plain sight basically means what? ऊपर से दिख रहा है. I think this is the idiomatic way of putting it. So now if you ask me, sir कैसे करें? मतलब environment में मतलब hiding in plain sight तो ठीक है यार, मतलब secretary हूँ मैं. So everything is available to me, which may not be available to others. So they are hiding in plain sight, not carefully or hiding from watchful eyes. Because when you look at B, C, and D, it means that if it is hiding within everyone's sight, no one can access it. If it is hiding from watchful eyes, again, no one can access it. If it is hiding documents very carefully, then how can you access it? If it is hiding in plain sight, का मतलब क्या होता है कि if anyone has access, they can get it. So what logically appeals to me is that these are innocuous secretaries, they are researchers, they are having access to information because they are hiding in plain sight. साफ साफ कहीं ऊपर नीचे लिखा हुआ निकाल सकते हो उसको आप. Even since Girish won the ever since Girish won the prestigious Infosys prize, he has been behaving कैसा होगा? क्या होना चाहिए? Again, word usage. Tell me the answer now. ambitiously. Ambitiously behavior हो सकता है क्या? सर condescendingly होगा. मतलब देखो, आपको अगर मतलब नहीं पता होगा ना इसका, तो आपको शायद आंसर नहीं मालूम पड़ेगा. तो देखो इसको कैसे तोड़ते हैं वर्ड को. कॉन प्लस डिसेंड. ठीक है, डिसेंड का मतलब क्या होता है? नीचे आना. करेक्ट, किसी के साथ नीचे आना. तो व्हेन यू लुक एट समवन कंडिसेंडिंगली, उसको कैसे देख रहे हो आप? एडमायर कर रहे हो या उसको नीचा देख रहे हो? सर इसमें कौन का क्या मतलब हुआ? Condescendingly means to come down or to look down on, है ना? तो कंडिसेंडिंग जो होता है मेरे को यहां से पकड़ में आता है. डिसेंड का मतलब होता है नीचे आना. तो टू कंडिसेंड, देखो इसका ओरिजिन पता है कहां से आता है? टू कंडिसेंड योरसेल्फ. तो जैसे फॉर एग्जांपल आई विल गिव वेरी वेरी गुड एग्जांपल. जैसे कि पुराने जमाने में क्या होता था ना, द किंग्स वेर वेरी रिच पावरफुल, but when they went to a sage or a priest or a holy man, can I say that they forgot that they were kings and they were willing to condescend themselves? आप समझ में आया? I am a king. When I go to see a holy man who is living in a forest, I am willing to not be a king. I am willing to condescend. Can I say to come descend down to someone's level? कन का मतलब साथ में भी तो होता है ना.
कॉन्ग्रीगेशन, कंजंक्शन। तो कंडिसेंट का मतलब क्या होता है कि नीचे गिर जाना किसी के लेवल पे। So the gods or the kings are willing to condescend themselves in front of sages. So condescending का मतलब क्या होता है, उसका मतलब फिर चेंज बेसिकली होता सर रिस्पेक्ट दिखाना ना उनको, है। सेजेस नहीं, को रिस्पेक्ट शो करना, उनसे नीचे हो जाना। लोअर लेवल पे आ जाना, to bring down your level such that you match their level, उसको बोलते हैं condescend। इसलिए descend का मतलब क्या होता है, डाउन। ascending order, descending order पता है ना। तो डिसेंड का मतलब नीचे, तो यस। डिसेंड बेसिकली मींस खुद को नीचा गिरा देना इन ऑर्डर टू बिकम इक्वल टू समवन हु इज लोअर देन यू। तो अभी क्या हो रहा है, इसका मतलब चेंज कैसे हुआ है। कंडिसेंडिंग का मतलब होता है किसी को नीचा देखना, ये इसका नया मतलब, ग्रेजुअली उसका एक नया वो है। कंडिसेंडिंग का मतलब क्या होता है, टू बिहेव एरोगेंटली और टू लुक एट समवन एज इफ ही इज इंफीरियर। So ever since Girish won the prestigious Infosys Prize, he has been behaving condescendingly, as if he is well above the others and the others are way down him. So condescendingly basically means to act as if you are superior to others. To act as if or as though you are superior to others and others are inferior to you. Up the moment you know the meaning of this word, you feel that this is the best fit. Yes or no? Yes, sir. यस सर। देखो, किसी का बिहेवियर एम्बिशियसली नहीं होता, इनको बड़ा अजीब सा लगता है। People might have ambition. I have ambition. My father is ambitious. My younger brother is very ambitious. But my younger brother is behaving ambitiously. मेरे को यार, मेरे को समझ में नहीं आता, ऐसा ही बताऊं तो मेरे को ये यूसेज ही सही नहीं लगता। It might have grammatical meaning. It might have grammatically ठीक है, ambitious क्या है, behaving ambitiously. Someone might behave ruthlessly, carelessly, arrogantly, assertively. But if someone is behaving ambitiously, मेरे को समझ में आता है यार, ये ambitious behavior कैसे हो सकता है? Something which does not make sense. That's why बहुत लोगों ने फट से मार्क कर दिया, बिकॉज वो प्राइज जीता है तो एम्बिशियस हो गया, तो बिहेवियर एम्बिशियसली कर रहा है, विच इज लिटिल। बट द मोमेंट यू नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड कंडिशनिंगली, आंसर बन जाता है, इसका आंसर यही होगा। कॉन्ट्रोवर्शियली यार वही है, हाउ कैन समवन्स बिहेवियर बी कॉन्ट्रोवर्शियल? आई मीन इश्यूज आर कॉन्ट्रोवर्शियल, पॉइंट्स आर कॉन्ट्रोवर्शियल, some sort of decision can be controversial. Someone's behavior cannot be controversial. It can be immoral. It can be unethical. समझ में आ रहा है सबको? तो इसको मैं क्या कैटेगरी दूं बताओ? इसको तो सिंपल वर्ड यूसेज है ये। इसलिए मैंने कहा था आपसे, इफ यू रिमेंबर द फर्स्ट सेशन आई हैड गिवन, आई हैड टेकन, आई टोल्ड यू कि यू रीड अ लॉट। सो ऑफ कोर्स आई विल ट्राई टू टेक दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, बिकॉज़ मैंने सीयूटी के लिए बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बनाए हैं, तो सीयूटी वालों को भी हेल्प हो जाएगा। बट मेरा कहना क्या है ना, कि ऐसे क्वेश्चंस को आप कैटेगराइज नहीं कर सकते कि सर कैसे करेंगे, क्या होगा। इफ यू आर वेल रेड यू विल गेट दिस क्वेश्चन, अदरवाइज आपसे नहीं होने वाले ये क्वेश्चंस। लेकिन कुछ इजी होते हैं, कुछ डिफिकल्ट होते हैं। जैसे ये वाला है, फ्लाइंग दिस सिंपल एरोप्लेन इज अ डैश ऑफ, क्या है बताओ? Piece of cake. पीस ऑफ केक। अब ये ज्यादा कॉमन है, दिस इज मोर कॉमन as a idiom than maybe this one or maybe this one. So if I have to categorize, this becomes moderate question, this becomes a bit slightly difficult, halanki you can get it, and this becomes an easy question. तो जो बहुत अच्छा होता है इंग्लिश के नंबर बहुत बढ़ जाते हैं, जो बहुत एवरेज होता है उसको फिर दिक्कत हो जाती है। फ्लाइंग दिस सिंपल एरोप्लेन इज अ डैश फॉर द एक्सपीरियंस पायलट है, इसका मतलब गलती करने की चांसेस बहुत कम है। इसका मतलब ये जो चीज है ये उसके लिए आसान होगी मतलब क्या है? पीस ऑफ केक। Sir, in 13th question, what is the meaning of innocuous? Innocuous means harmless, ठीक है। मैंने एक मूवी में देखा था ये वर्ड, एक मूवी थी फिलाडेल्फिया, तो उसमें डॉक्टर कुछ तो बोलता है, तो मेरे को छप गया दिमाग में मेरे आज तक। तो बोलता है व्हाट इज दिस, इनोकुअस, इनोकुअस मींस हार्मलेस। तो हार्मलेस है तभी तो इंफॉर्मेशन चुरा पा रहा है ना। अगर हार्मफुल होता है इसका मतलब, तो चुरा कैसे पाता, फिर तो पकड़ में आ जाता। Got यू it, नो sir. व्हाट? हाँ, समझ में आ Got गया? it, sir. हाँ, एस्पियोनाज क्या होता है? द एक्ट ऑफ स्पाइंग, द गेम ऑफ स्पाइंग। जेम्स बॉन्ड की बहुत सारी मूवीज नहीं होती, एस्पियोनाज मूवीज होती हैं। तो स्पाई इज बेसिकली अ नाउन फॉर्म and the act of spying as a whole is called as espionage.
समझ में आया कि नहीं? तो वर्ड्स का Yes. थोड़ा वेरी। अब ऐसे ऐसे हमने क्वेश्चंस किए, तो हमने इसका मीनिंग निकाल लिया, इसका मीनिंग निकाल लिया। ऐसे आपको जब भी आप पढ़ते हो ना, तो आप मीनिंग्स निकालते चले जाओ, बिकॉज वोकैबुलरी इज एन एंडलेस जॉब। इवन टुडे आई फील कि यार मुझे बहुत सारे वर्ड नहीं आते, इतने साल से पढ़ रहा हूँ, फिर भी लगता है यार नहीं, मेरे को ये नहीं आता, मेरे को वो नहीं आता, मैं ये नया क्या आ गया। कुछ भूल जाता हूँ, कुछ एक ही बार देखा याद हो जाता है। तो इट ऑल डिपेंड्स, बट आई वुड से द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू बिकम। 16 का आंसर क्या होगा? अभी हम लोग ऐसे कर रहे हैं कि हमको सिलेबस पता नहीं है, हमने आरसी किया नहीं, तो हम देखेंगे कि भाई किस किस वैरायटी क्वेश्चन आ रहे हैं। अब इन वैरायटी को मैं इसलिए सॉल्व करवा रहा हूँ बिकॉज मुझे लगता है कि इन वैरायटी कोई प्रिपरेशन नहीं होती है। सो द मोर यू रीड द बेटर यू बिकम। ठीक है यार, मैं कुछ बहुत सारे कराऊंगा, आप भी बहुत सारे करोगे, तो हो सकता है कि कुछ कुछ यहाँ वहाँ तुक्के में बैठ जाएगा। आंसर Sir, क्या है इसका? option A, sir. यस सर, ऑप्शन ए। आपको लग रहा है क्या भाई? Yes, For sir. the Inclusivity or diversity. LI है this ना sir? shops has been committed to building a culture where everyone is welcome. They are an ally है, ally पता नहीं, ally होगा to the LGBTQ community, and this is just one instance of their, ठीक है, so they are trying to welcome everyone. LGBT बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा, तो आई थिंक एलजीबीटी क्या होता है, वो लेस्बियन, गे, ट्रांससेक्सुअल जो भी है, तो इसका Bi मतलब transparent. हाँ, तो Queer. दैट यू आर वेलकमिंग एवरीवन। बाइसेक्सुअल। ए होगा ना आंसर, क्लियर एवरीवन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन discriminatory and discretionary? हैं? बताओ मुझे। सर डिस्क्रिमिनेट करना मतलब किसी को अलग से वो भेदभाव करना वैसा। भेदभाव, डिस्क्रिमिनेटरी इज भेदभाव है ना, एंड व्हाट इज डिस्क्रिशनरी? व्हाट इज डिस्क्रिशन? किसी की मर्जी का ध्यान रखना। डिस्क्रिशन क्या होता है? टेकिंग इनटू अकाउंट द विलिंगनेस ऑफ अ पार्टी। आपको एग्जांपल दूं मैं, कुछ कुछ चीजें है ना, मतलब इट इज द सुप्रीम कोर्ट का डिस्क्रिशन है, उसकी मर्जी चलेगी यहाँ पे। आप समझ में आ रहा है डिस्क्रिशन क्या होता है? किसी की मर्जी चलनी, उसको बोलते हैं डिस्क्रिशन। सर डिस्क्रिशन जो है वो डिस्क्रीट से रिलेटेड है या नहीं? हाँ, डिस्क्रीट तो नॉर्मली हम उसको बोलते हैं जो एक तो डिस्क्रीट Like be discreet in the choice of your words. ऐसे. हाँ, आई विल टेल यू नाउ। डिस्क्रिशन का जो एक बहुत सारा जो मतलब होता है, वो बेसिकली ऐसा होगा जैसे कि आई विल टेल यू, एक डिस्क्रीट होता है, देयर आर टू वर्ड्स, हाँ, तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए। एक मिनट। एक डिस्क्रीट होता है जो, अब स्पेलिंग में थोड़ा गड़बड़ कर सकता हूँ, बिकॉज एक तो ये डिस्क्रीट है और एक ये डिस्क्रीट है, ऐसा कुछ तो है, ठीक है। और तो यहां से एक आया है डिस्क्रिशनरी, ठीक है। अब डिस्क्रीट जो होता है वो होता है सीक्रेट। आई डोंट नो द स्पेलिंग, बट लेट मी चेक, इसका स्पेलिंग कौन सा होगा। डिस्क्रीट, तो उसमें तो स्पेलिंग भूल जाता हूँ हमेशा। हाँ, डिस्क्रीट का मतलब जो दिया हुआ है वो है सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है, सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट। एक मिनट में, दिस इज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट, और ये है सीक्रेट। कैसे? A discrete meeting took place between Vladimir Putin and PM Modi, ठीक है, व्लादिमीर एंड मोदी, ठीक है, क्लियर। तो ये कहना है डिस्क्रीट बेसिकली मींस
not open, maybe done in secret, not secret but not open, not out in the open. जैसे कि आप किसी मीटिंग में बैठे हो पब्लिक प्लेस में, तो आपको छींक आती है या आपको खांसी आती है, तो आप कैसे खांसोगे? घर में कैसे खांस, जोर से एकदम सब लोग उठ के बैठ जाएंगे। लेकिन अगर आप मीटिंग में हो तो आप डिस्क्रीटली करते हो ना, ताकि कोई नोटिस ना करे। सो नॉट इन द ओपन, सो दैट नो वन नोटिसेस। तो ये होता है डिस्क्रीट का मीनिंग। तो डिस्क्रीट इज नॉट एंटायरली मतलब discreet does not entirely mean secret, but it is basically avoiding notice. Clear to everyone? Avoiding notice. ये जो discrete होता है ना, ये है separate and distinct. दो इंडिपेंडेंट चीजें हैं, अलग अलग हैं। वो है discrete, जैसे discrete numbers होते हैं, इंडिविजुअल एकदम। आई विल गिव बेटर एग्जांपल। discrete processes होते हैं, जैसे आप घर में खाना बनाते हो ना, तो कहना ऐसे दाल एंड चावल आर टू डिस्क्रीट प्रोसेसेस। अगर आपको दाल चावल बनाना है किसी के लिए, so can I say you can prepare dal independent of chawal? So you can say dal chawal, rajma chawal are preparing rajma and preparing chawal are two discrete processes. Separate and distinct can be independent of each other. तो ये discrete ऊपर वाला जो है वो CRET है, नीचे वाला discrete जो है वो ऐसा वाला है. So I don't know how will you remember this, but try to fit in and you will get the meaning. Clear to everyone? Yes or no? सबको समझ में आ गया? Yes. तो ये Yes, ध्यान sir. 2 साल कोशिश की समझने की, मैं आज ही भूल जाता हूँ। तो मैं सोचता हूँ कि कोई तरीका निकाला जाए। तो मैं क्या सोचता हूँ कि ये जो CRET है ना, तो ये सीक्रेट नहीं होगा, इसका मतलब मैं इसको ऐसे पकड़ाऊँ। SECRET है ना, तो ये CRET है, डबल ई नहीं है, तो मैं इसको SECRET DISCRET। इसका मतलब ये है कि जो डिस्क्रीट है, इट इज नॉट लिंक्ड विद सीक्रेट, दैट मींस द अदर वन इज लिंक्ड विद सीक्रेट। ऐसा कुछ तो ट्रिक निकाला था मैंने, बट भूल जाता हूँ। एनीवेज लेट्स हम गो ऐसे बैक। भी तो कर सकते हैं। सेपरेट वाला डिस्क्रीट है सर, उसके अंदर टी आता है दोनों में एंड में, और हाँ, दूसरा वाला डिस्क्रीट में जो सीक्रेट वाला दोनों में ईटी ये आता है। डिस्क्रीट जो है ये एंड में टी आ रहा है, तो इसमें भी टी आ रहा है, याद रखो। ठीक है, मुझे भी याद रहेगा इसका मतलब। इसमें ऐसे भी कर सकते हैं, डिस्क्रीट में ई और ई सेपरेटेड है तो वो सेपरेट होगा, और इन दोनों में ई साथ में है तो ये। हाँ, हालांकि मुझको मीनिंग निकालना था एक्चुअली। तो वो जो आइडिया है ना कि अगर सीक्रेट का टी और डिस्क्रीट का टी, ये सही है। ये डिस्क्रीट में टी एंड में आ रहा है ना, तो सीक्रेट में भी टी एंड में आता है, इसका मतलब ये डिस्क्रीट सीक्रेट है। ये आपको बेटर याद रहेगा। मैंने एक पता है वर्ड याद किया था, इंजेन्युअस एंड इंजीनियस। मैं आज तक भूलता नहीं हूँ वो। आई विल आल्सो गिव द ट्रिक टू यू। वो कंफ्यूजिंग वर्ड में है, आपको आएगा भी एग्जाम में। एक है इंजीनियस और एक है ingenuous. Again, the spelling could be wrong. They are similar in sound, spelling, and to a great extent even somewhat the meaning, but slight difference हो जाता है। Meaning तो थोड़ा अलग ही है। ये ingenuous बोलते हैं। Again, the spelling is wrong. But एक difference क्या है ना कि इसमें genius वाला I आ जाता है। सबको दिख रहा है ना ये I? Yes, sir. उसका मीनिंग भी होगा। ये genius वाला I है, और इसमें वो genius वाला I नहीं है। तो ये जो होता है ना, ये बेसिकली होता है क्लेवर, क्लेवर इनोवेटिव, और ये है इनोसेंट। तो कैसे निकाला मैंने? जो इंजेन्युअस होता है वो इनोसेंट होता है। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। जैसे कि भाई आप किसी घर में गए और वहां पर छोटा बच्चा है 2 साल का, और वहां पर क्राइम हुआ है। बच्चे को कुछ पता ही नहीं ना। कैन आई से द चाइल्ड विल लुक ingenuously at the police, innocently, or the ingenuous baby did not know that she was being carried to the operation theater for her heart operation. जैसे आप अगर नॉवेलिस्ट होते हो और आपको लिखना है कि भाई एक बच्चा है 5 साल का, मैंने एक्सपीरियंस किया था। माय फादर वाज एडमिटेड इन मेदांता लखनऊ। ही वाज अंडरगोइंग अ बाईपास सर्जरी, ही अंडरवेंट अ बाईपास सर्जरी। तो उनके बगल बेड में एक 2 साल का बच्चा था, उसका हुआ था वॉल्व का। So when I went to see my father in the ICU, I saw that there is a small baby and I was surprised कि यार 2 साल के बच्चे का कैसे हो सकता है मतलब हार्ट का। So I got to know कि इसका वॉल्व रिप्लेस किया है डॉक्टर्स ने। So when I saw that baby was totally unaware कि क्या हो रहा है उसके साथ, कहाँ लेके जा रहे हैं। So can I say that the baby in the operation theater looked at the doctors ingenuously? हालांकि उसको बेहोश कर देंगे, बट ठीक है, innocently, doesn't know anything.
बट ये इंजीनियर्स जो होता है वो क्लेवर होता है, स्मार्ट होता है. There are ingenious ways by which you arrive at the answer in mathematics without solving the question. Yes or no? समझ में आ गया? एक ingenious है और एक ingenuous है. Ingenuous में innocent होगा, इसका spelling इसमें I नहीं, इस part में I नहीं आएगा, इसमें इस part में I आ जाता है. तो you can just make out. ठीक है? Confusing word है. इंजीनियर्स की स्पेलिंग यही होती है? मैं एक बात आपको लिख के देता हूँ इंजीनियर्स की स्पेलिंग. ठीक है, मैं भूल जाता हूँ यार, स्पेलिंग वाला चक्कर जो है ना. इंजीनियस है, एक इंजेनुअस है. तो इंजेनुअस, हाँ, INGENUOUS ये है. इंजेन्यूअस. ठीक है, और इंजीनियस जो है वो सही लिखा था मैंने, ये है. Did you get it everyone? समझ में आ गया? जी सर. Ingenuous, bright, smart, clever, innovative. यहाँ पे वो है, इसका मतलब ये वहां पे नहीं है. तो कैसा होगा? बोला भाला, doesn't know, अच्छा क्या खराब क्या. क्लियर हो गया सबको? अब याद रहेगा ना? Like antonyms. हाँ, एंटोनिम्स की तरह, राइट, ऑलमोस्ट लाइक एंटोनिम्स. करेक्ट, करेक्ट एवरीवन. सो दिस इज द वे यू हैव टू, सो यू हैव टू फाइंड सम सॉर्ट ऑफ, क्या बोलते हैं इसको में, क्या, नेमोनिक टेक्निक्स. नहीं तो कभी याद ही नहीं होगा हमें ये सब वर्ड्स, आप कभी भी आपको स्ट्राइक नहीं होगा. So these are the ways by which you try to, I try to remember, because it's very difficult to remember confusing words. चलो भाई, तो अब जाते हैं हम कहाँ पर. एक मिनट, let me open this. ठीक है, चलो आगे बढ़े अब. So this you have gotten correct. 17 का आंसर क्या होगा? Leela is always nasty and inconsiderate with her colleagues. Now that she has a rule, now she has a rule superior, she is getting क्या होगा? ये बहुत आसान है. टेस्ट ऑफ हर बी ओन सर. मेडिसिन. बिल्कुल. क्रिकेट देखते हो ना, तो उसमें जब बॉलर पीटता है ना बैट्समैन को, तो उसमें बोलते हैं नाउ ही इज गेटिंग द टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन. हाँ सर. दिस इज वेरी कॉमन. आई मीन, अगर आप बोलोगे सर ये कहाँ से पढ़े, देखो कुछ इडियम्स होते हैं ना, इतने कॉमन होते हैं कि उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है. On the other hand, there are idioms which are so uncommon that there is no book that can teach you those idioms. So English test जो होती है ना, वो basically when they design these kind of questions, they would put certain easy idioms so that everyone gets it. Some of them would be very difficult. एक मिनट. Now let's go further ahead. I have some books, आपको मैं शेयर करता हूँ. एक बहुत जबरदस्त किताब मिली है idioms and phrases की. आगे, she dash her classmates because she comes from a very rich aristocratic family. अभी मैंने कुछ देर पर डिस्कस किया था. क्या था वो? looks down on. लुक्स डाउन ऑन. ऊपर हो तो दूसरे को नीचे देखोगे ना. तो अगर आप गरीब होते तो आप बोलते कि आई एम फ्रॉम वेरी पुअर फैमिली, सो आई हैव द हैबिट ऑफ लुकिंग अप टू पीपल हु आर रिच. है ना? ठीक है. I still have 2 more difficult exams left, but I'm trying to dash. Look on the bright side. After these, I won't think upon the sunny side. No, look forward to the bright side. No, हाँ, look on the. अभी ये सही है mostly. I don't know, but again, there सर फॉरवर्ड वाले में कंफ्यूजन आ रही है. लुक फॉरवर्ड वाले में आई एम ट्राइंग टू लुक फॉरवर्ड टू द ब्राइट. something होता है जो उसमें कोई इवेंट होने वाला होता है. अच्छा हाँ. है ना, वो लुक फॉरवर्ड टू होता है. ऐसे फॉर एग्जांपल है कि भाई आपने ट्रिप प्लान की है और बहुत दिन बाद आप जा रहे हो घूमने के लिए. आईपी मैट हो गया, 12th का एग्जाम भी हो गया, तो आपने बोला यार लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, यस, माय ट्रिप टू लद्दाख और लेह और समवेयर. तो वो लुकिंग फॉरवर्ड टू सही है. आई एम ट्राइंग टू थिंक अबाउट द सनी, थिंक अबाउट द, ठीक है. तो बिकॉज द गाय इज वेरी श्योर अबाउट द पॉजिटिव साइड, so he is not think upon the sunny side. तो इसमें क्या होता है ना कि you can use elimination very smartly. Think upon क्या होता है यार? सोचोगे क्या? आप तो बोल दिए हो कि आप बहुत खुश हो, तो ये दोनों बाहर चले गए. Look on the bright side, look forward to the bright side. Look forward to मतलब आप इवेंट को look forward to करते हो. जैसे ब्राजील और अर्जेंटीना का फाइनल से, या जो भी फाइनल था अभी अपना,
France and Argentina. So many people are looking forward to it. सर ठीक बट है। इसमें 2 एग्जाम्स अभी स्टिल लेफ्ट है ना, तो वो तो अभी होने हैं फ्यूचर में, तो लुक नहीं, फॉरवर्ड। बंदे का जो रिएक्शन है ना, ये इसको ध्यान देना है। So this reaction is born out of what? Difficult एग्जाम तो है, he could be very pessimistic about it, but ये बट जो है इसका मतलब ये दिखा रहा है कि he is trying to be very positive. पॉजिटिव किस सेंस में कि इसके बाद तो कुछ भी नहीं है। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ जैसे लुक फॉरवर्ड तो जैसे फ्यूचर इवेंट्स के लिए यूज होता है ना, तो जैसे भी यहाँ पे लिखा है ना 2 एग्जाम्स लेफ्ट। साइड जो है लुक फॉरवर्ड टू द ब्राइट साइड भी हो सकता है। जैसा मैं बहुत श्योर नहीं हूँ, इसका आंसर देखना पड़ेगा मेरे को कि इज इट लुक फॉरवर्ड टू द ब्राइट साइड है, लुक फॉरवर्ड ऑन द ब्राइट साइड, लुक ऑन द ब्राइट साइड, है ना, देखना पड़ेगा बिकॉज मैं भी श्योर नहीं हूँ बहुत। सो आई कैन जस्ट चेक, है ना, सर ये तो हो सकता है कि इनमें से कोई एक ही इडियम हो, दूसरे को कुछ हो ही ना नहीं कुछ। मतलब मुझे क्या लगता है ना कि होता है ना कि इडियम्स है वो होते ही स्पेसिफिक वर्ड्स हैं। नहीं, आई विल टेल यू मेरे को क्यों लग रहा है कि ये थोड़ा ऑकवर्ड है। जब आप कोई लुक फॉरवर्ड टू करते हो ना, तो आप अभी तक इवेंट होना है, बट व्हाट इज हैपनिंग हियर इज दैट I still have to know, but I am trying to dash. So 2 टफ एग्जाम बाकी हैं, उसके बाद कुछ भी नहीं है, तो ये 2 आपके पास आउटलुक अभी अवेलेबल है, ये अवेलेबल है और ये अवेलेबल है। तो आप क्या देख रहे हो कि या फिर आप इसको 2 एग्जाम को देख के रो बैठ के कि यार गजब होने वाला है, 2 एग्जाम है, या फिर आप ये देखो कि इसके बाद कुछ भी है, देख के थोड़ा अच्छा फील करो। मेरे को उस तरह का लग रहा है ये। When you look forward to something, ये इवेंट होना चाहिए एक्चुअली। This should be an event to look forward to, but this is not an event actually. This is something basically which is a perspective actually. Do you understand? अगर ये look forward to होता तो मैं इसको event बनाता, जैसे कि looking forward to the marriage, looking अच्छा। forward to उस तरह का मेरे को सही लगेगा कि भाई कोई चीज होने वाली है तो उसका वेट कर रहा हूं मैं होने के लिए। बट यहाँ कोई इवेंट तो है नहीं, तो इसका मतलब ये है बेसिकली कि पर्सपेक्टिव की बात कर रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल है कि आपको 12th में आए 98% और आपको आईपी मैट जस्ट मिस हो गया आपका, तो मैं उल्टा करता हूँ। 12th में आपको आए 70%, आपका आईपी मैट क्लियर हो गया, मतलब शॉर्ट है। तो वो लोग अरे यार माय 12th एग्जाम डिड नॉट गो वेरी वेल, आई हैव जस्ट 70%, बट आई हैव क्रैक्ड आईपी मैट, सो आई एम लुकिंग ऑन द ब्राइट साइड। ठीक है। बेस्ट आंसर है नेबर्स के लिए। ऐसा कुछ होगा तो आई फील दिस इज द रीजन, है ना, दैट इज व्हाई। एक मिनट, अरे हाँ जी यार तो आपने क्या देखा, देखो ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पेपर चेंज तो नहीं हो गया, अरे कुछ और निकल गया रुको। ये 2021 का खुल गया। ये हाँ, तो हमने क्या देखा कि हमारे पास 12 क्वेश्चन तो आरसी के थे, जिसको शायद हमको पढ़ के पैसेज से आंसर करना है। उसके बाद जो 9 क्वेश्चन थे, यानी कि 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 7 क्वेश्चन, ये 7 क्वेश्चन थे जिनका कोई ऑर्डर स्ट्रक्चर नहीं है। सम ऑफ देम वर ऑफ कोर्स idioms, the rest were just word usage. I mean they are just क्या बोलते हैं इसको कि भाई ठीक है, एक तरह से हम लोग को फ्रेजिंग दी गई है, आपको बेस्ट फ्रेज चूज करना है। So sometimes you might know the phrase and get the question correct, sometimes it might be difficult for you. तो अब ऐसी चीजों को हम हेल्प नहीं कर सकते, इसको बोलते हैं बेसिकली कि टेस्टिंग इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। इसको मैं एप्टीट्यूड के भी अंदर नहीं लाता। If you are well read, you will get many of these questions correct. If you are unfortunately not well read, even if you are intelligent, you may not get these questions correct. So आप बोलोगे सर इसको कैसे करें, मैं बोलूंगा इसको करने के लिए आपके पास एक ही काम है, and that is that you have to go through these kind of idioms a lot. मैं आपसे एक और चीज शेयर करता हूँ, तो मैं वो लिंक भी शेयर करूंगा, जस्ट अ मोमेंट। इसका मैंने सॉल्यूशन निकाला आप लोगों के लिए, ठीक है, एक मिनट। और ऑल ऑफ यू कैन सी द वेबसाइट ना, जो मैं खोल रहा हूँ अभी। यस। हाँ, इसमें एक कैट स्टडी मटेरियल है, कैट का नाम दिया है बट ये एक्चुअली नॉन कैट में। तो इसमें अगर आप स्क्रॉल करोगे ना, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे कैट टाइप, आपको ये मिलेगा, देखो इंग्लिश ग्रामर बुक। हालांकि ग्रामर में इससे बेटर कराया मैंने, कराऊंगा इससे, मैं कराया भी है। ये है वो कैट पीडीएफ। तो अगर आप इसको खोलेंगे तो बहुत अच्छी चीजें मिलेंगी आपको। ये है idioms एंड फ्रेजेस, बहुत जबरदस्त है, मैं आपको डाउनलोड, हाँ ये है, दिख रहा है ना। सर आप पीडीएफ भी शेयर कर दो डायरेक्टली।
नहीं, मैं क्या करूंगा, लिंक ही शेयर कर दूंगा, आप पूरा डाउनलोड जो करना कर सकते हो, ठीक है? दिख रहा है ना सबको? यस और नो, Yes, कैन हाँ यू? जी। यस सर। फॉरेन वर्ड है, जापानीज वर्ड है, वर्ड्स डिराइव फ्रॉम नेम्स ऑफ पीपल, फिर कलेक्शन ऑफ थिंग्स है, फिर एडजेक्टिव्स रिलेशंस है, ये पता नहीं ईडियम क्यों नाम दे दिए इसका। ये देखो आ गया ईडियम, ये बहुत फ्रीक्वेंटली है। मतलब मैंने आपको अभी आपको इसको 500 पेज दिया तो आप बोलते सर 500 पेज क्यों दे रहे हो, वैसे ही नहीं होने वाला, आप थोड़ा इसको कम करके दो ना। तो ये कम करके वाली बात है। गाला डे, गिफ्ट ऑफ द गैब, देखो ना, मतलब जी पे आ गया, एच पे आ गया, तो ये बेसिकली आप लोग कवर कर सकते हो। खाना जब कोई घर में आता है तो उसको आप 50 रोटी मत दो और 50 सब्जी दे दी पकड़ा के, उसको उसको आप इतना दो कि खाए, उसको मजा भी आए। तो यहाँ पर क्या है ना कि देर आर लॉट्स ऑफ idioms एंड phrases, they are commonly used and most of these are something which we should be familiar with so that if they come in the exam we can get them correct. हाँ कि ना? yes, sir. कितना बढ़िया है बताओ, कितना मजा आएगा आप लोगों को, पढ़ाई भी कम हो गई और इफेक्टिवनेस भी बढ़ जाएगा। देखो खत्म, 15-20 पन्ना है, सब खत्म हो गया। A white elephant in the room, a white lie, a wise goose chase with a grain of salt, कितना कॉमन होता है पता है क्या? यू टेक माई एडवाइस विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, मतलब बहुत सीरियसली मत लो, फ्रेजल वर्ब भी आ गया आपके लिए। तो इससे बढ़िया आपको कुछ नहीं मिलेगा, इसको आप चुपचाप रट डालो। ये रट, और मैं यही कराऊंगा अपन क्या करेंगे ना कि हर क्लास में बैठ के ये सब करेंगे, ताकि आपका एक रेस्ट्रिक्टेड नैरोड फोकस होना चाहिए। जस्ट बिकॉज यू हैव वोकैबुलरी डजंट मीन कि आप लेके बैठ गए ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी और शुरू हो गए पूरा दिन, फिर तो कभी नहीं कर पाओगे आप। उसी तरह से जैसे इसमें आपने इडियम्स एंड फ्रेज की किताब देखी है, उसी के नीचे है कैट वोकैब टेस्ट, ठीक है? ये इक्वली इंपॉर्टेंट है, ये देखो टेस्ट है ये, आप टेस्ट सॉल्व करते जाएं। ऑब्जेक्टिव की भी दिया हुआ है नीचे, देख रहे हैं? फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में है, ईडियम और इसके फॉर्म में है। तो अगर आप इसको करेंगे रोज रोज बैठ के, और एक लिमिटेड सेट है, सबसे अच्छी चीज क्या होती है ना कि जब एक लिमिटेड नंबर की कोई चीज होती है तो उस पर मैं अमल कर सकता हूँ, उसको मैं फॉलो कर सकता हूँ। जब वो चीज हो जाती है अनलिमिटेड, तब मेरे को फॉलो करने में दिक्कत होती है, बिकॉज देयर इज नो नॉर्थ साउथ और ईस्ट और वेस्ट टू दैट काइंड ऑफ स्टफ। इसको आप खत्म करें बैठ के पूरा, आप पूरा खत्म कर ले, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप लोगों को बहुत सारा वोकेबलरी आपका इतना बढ़िया हो जाएगा, and you would have prepared for all the exams. So we will solve these kind of question. मैं आऊंगा बोलूंगा चलो भाई एवरेज का मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे यार ये सब पढ़ा तो था मैंने, भूल गया। ऐसा 3-4 बार करोगे ना तो आपका बहुत सारा वोकेबलरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? सर यस आपने सर। कुछ वर्ड्स की निमोनिक एड्स बनाए हुए हैं क्या अपनी तरफ से? ये वाले नहीं, मैंने तो उसमें डाले हुए हैं, उसमें याद करने के तरीके, मतलब कुछ वर्ड्स के। तरीके तो नहीं है एक्चुअली, बिकॉज याद करने के तरीके सच रूट मैंने डाला हुआ है बहुत सारा कि वर्ड रूट यूज करके कैसे आप याद, बिकॉज रूट इज द बेस्ट वे टू रिमेम्बर। तो उसमें मैंने बहुत सारे डाले हैं वीडियोस, तो आप अगर देखोगे तो आपको अच्छा भी लगेगा। अच्छा अच्छा, वैसे है, ओके। तो इसी को फोकस करना, बाकी आपको बहुत डाइग्रेस होने की जरूरत नहीं है। वेयर इज द अदर थिंग? हाँ, अब हम नीचे जाते हैं, बताओ क्या होगा इसका आंसर। ये ग्रामर आ गया। इफ आई हैड नोन दैट यू नीडेड टू गो टू द एयरपोर्ट यस्टरडे आई कुड डैश, क्या इसका, ये भी अगेन दिस इज समथिंग व्हिच यू फील कि अरे यार मेरे को ये आता है, ये बना लूंगा मैं, इसका आंसर क्या I होगा? should have बी। driven there. आई बी वुड हैव, सेकंड। yes, I would have driven you there. If I had known that this would have happened, I would have done this. तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन के लिए हमेशा वुड यूज करते हैं। द प्रिंसिपल अभी मैं कराऊंगा, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि सम ऑफ द ग्रामर क्वेश्चंस कैन बी वेरी इजी। अभी इसको आप 20th वाले को अगर इवन ग्रामर नहीं भी किया तो आपका आंसर बन जाएगा। 21st का आंसर क्या है? द प्रिंसिपल एंड प्रोफेसर्स आर ऑथोराइज्ड टू सैंक्शन लीव टू स्टूडेंट प्रोवाइडेड, She has a good attendance record. A. प्रेजेंट टेंस होना चाहिए ना, बिकॉज फ्यूचर के प्रॉमिस पे आप उसको लीव दे दोगे। अब आप बोलोगे A. सर ये भी तो, हाँ नहीं वो तो है, प्रोवाइडेड शी हैज, ये भी सही है। अब इस ये भी तो सही है ना। आपको मैंने पैसिव वॉइस कराया था ना एक बार एक सेशन में, नो जो सर। लोग नहीं कराया था पैसिव वॉइस, क्या मैंने एक्टिव पैसिव वॉइस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब
सॉरी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को रिवर्स कर दो तो पैसिव वॉइस बन जाता है। पैसिव वॉइस जो होता है ना, अगेन मैं कराऊंगा आपको ये चीज, डोंट वरी, बट पैसिव वॉइस सेंटेंस को लंबा कर देता है। समझ में आया? पैसिव वॉइस आपके सेंटेंस को लंबा कर देता है। तो जो खाना आप ऐसे खा सकते हो, आप ऐसे क्यों खाने जा रहे हैं? तो प्रोवाइडेड शी मींस है। बाय डिफॉल्ट एक्टिव यूज करेंगे हमेशा। हाँ, बाय डिफॉल्ट एक्टिव यूज करना चाहिए। पैसिव तब यूज करोगे जो आपके पास सब्जेक्ट का आइडिया नहीं। आई विल गिव यू वेरी वेरी गुड एग्जांपल। आपका कुत्ता खो गया है, घर में कुत्ता है आपके, खो गया है। अब कुत्ता मिल गया, तो आप कैसे अनाउंस करोगे न्यूज? माई डॉग हैज बीन फाउंड, और दैट समवन हैज फाउंड माई डॉग। My dog has been माय found. डॉग हैज बीन फाउंड। कुत्ता मिल गया है, कौन कौन ढूंढा मुझे पता ही नहीं ना। तो ऑब्जेक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द सब्जेक्ट, तब पैसिव वॉइस ले लेगा वो। द डॉग हैज बीन फाउंड, पीएम मोदी हैज बीन शॉट, और राहुल गांधी हैज सर बीन अभी तो मर्डर्ड। बहुत जवान है सर। राहुल गांधी हैज बीन मर्डर्ड। तो भाई मीडिया वाले तो ऐसे लिखेंगे ना, राहुल गांधी हैज बीन robbed of his wallet असैसिनेटेड। on Delhi metro. तो अभी राहुल गांधी का पर्स खो गया, अब चोर पता ही नहीं कौन है, तो आपके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है पैसिव वॉइस में डालने के सिवा, बिकॉज समवन हैज picked Rahul Gandhi's pocket. So someone is not known to me, and even if I know, that person is not so important as to give him the subject position. तो मेरे को ऑब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो पता है मैं कैसे लिखूंगा अपने ब्लॉग में, अपने न्यूज़पेपर में, राहुल गांधी पॉकेट हैज बीन पिक्ड बाय समवन। डिड यू अंडरस्टैंड नाउ व्हेन टू यूज द पैसिव वॉइस? अदरवाइज पैसिव वॉइस की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ए और डी देखोगे दोनों ग्रामेटिकली सही है, लेकिन ए एक्टिव वॉइस है, इसलिए एक्टिव वॉइस होने की वजह से वो नंबर ऑफ वर्ड्स कम यूज कर रहा है। और जो डी है ना, वो पैसिव वॉइस और लंबा चौड़ा खींच रहा है, वही बोल रहा है खाना ऐसा खाने जा रहे हैं। ठीक है, डिड यू अंडरस्टैंड? तो ऐसे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मतलब यू विल रियलाइज कि हाँ, जैसे ये प्रिंसिपल्स हैं, अभी इसको मैं फिर से कराऊंगा आपको, तो आपको बताऊंगा कि भाई ये क्वेश्चन कौन सा कॉन्सेप्ट टेस्ट कर रहा है, तो आप लिख लो भाई किसी के एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस सर कराएंगे आपको। when when all the words on the page got scrambled, she quickly pressed undo, after which the अभी बैक बैक है, रिवर्ट का मतलब पीछे जाना होता है, तो बैक की जरूरत नहीं ना। और ये इट्स नहीं आएगा, पता है ना, ये इट्स फोर्थ या ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन सही है। जैसे आपने कहा कौन कि सा सर सही है? फोर्थ ऑप्शन सही होगा ना। देखो ये जो इट्स होता है ना, पहली चीज याद रखो इस बात को, आई विल जस्ट पुट इट, ये इट जो इज। इट ये जो इट्स है, ये इट इज होता है। ये जो होता है एपोस्ट्रोफी वाला, ये इट इज है, और ये जो है ये पोजेसिव प्रोनाउन है। समझ में आ रहा है सबको? क्लियर हो गया सबको? तो डॉक्यूमेंट को रेफर कर रहे हो ना यस। आप, तो ये होना चाहिए, है ना। अब प्रॉब्लम क्या है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो आपके पास दो ही चॉइस है, बी या डी है। लेकिन डॉक्यूमेंट रिवर्टेड बैक, रिवर्ट बैक की जरूरत नहीं ना, रिवर्ट मीन्स टू गो बैक एनीवेज, रिवर्ट में बैक छुपा हुआ है। इसलिए आप बोलते हो आई विल रिवर्ट इन हाफ एन आवर, आई विल रिवर्ट इन 30 मिनट्स। तो इसका मतलब क्या है, रिवर्ट का मतलब क्या है? मतलब मैं कॉल करूंगा या मतलब या वापस आऊंगा ना, तो बैक की जरूरत ही नहीं है। गाड़ी रिवर्स करते हो, रिवर्स बैक गाड़ी रिवर्स करते हो, रिवर्स बैक करते हो। कभी किसी ने बोला है कि सर मैं गाड़ी रिवर्स बैक कर रहा था? हंस दोगे, बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, हम तो गाड़ी रिवर्स ही बोलते हैं। रिवर्स क्यों बोलते हो? कि पीछे ही जाना होता है, बैक की जरूरत ही नहीं है। एवरीवन इज क्लियर? पर रिवर्ट यस बैक सर। बहुत बोला है। हाँ रिवर्ट बैक बहुत बार बोला है, आई विल रिवर्ट बैक इन हाँ, तो वो 30 बोलना मिनट्स। मतलब ठीक है, आई विल रिवर्ट बोलो। डिड यू अंडरस्टैंड? रिवर्ट का मतलब होता है कि पीछे आ रहा है वो, वापस आएगा मतलब। आई विल कॉल यू बैक सही है। और दूसरा है कि टू इट्स बहुत जरूरी है। ठीक है, रिवर्ट बैक इज इनकरेक्ट, यू जस्ट यूज रिवर्ट।
because it has back hidden in it, or back is implied. इसका क्या होगा? Picked up my interest होता है कुछ? A. Aroused होता है, okay. Correct, aroused my interest, because aroused फिर up जो है ना गायब, इसको भी गायब कर रहा है वो, ठीक है, इसको दोनों को लिया हुआ है, ठीक है. aroused होता है, ब्राइटन नहीं होगा, adopted नहीं, caught हो सकता है ना. हाँ सर, लग रहा था वो भी. aroused my interest, caught, but caught के साथ up तो नहीं आएगा. आई थिंक caught के साथ up आएगा, पर मुझे सही नहीं लग रहा है. caught up my interest, has caught my interest. Sir, isn't caught used more for something that is visible? दूसरा क्या होता है ना कि इसका जो फ्रेजल वर्ब है ना, ये कुछ लेके आता है. has captured my interest होना चाहिए, not caught. captured the audience's imagination, है ना? Yes or no? You capture the imagination or you arouse my interest, तो सही है. But caught के साथ I think caught up is be correct. That would it needs a preposition to make sense of it. Otherwise वो देखो phrasal verb में पढ़ाऊंगा आपको मैं. I was caught up in something का मतलब होता है कि I was engaged in something. That is what it means, you know. जैसे कि आप किसी पार्टी में जाना था, आप लेट हो गए, तो आप क्या बोलते हैं? I was caught up there. So to be trapped in something that keeps you busy, this is what it means. So you are caught up in something means you are trapped in something that has kept you busy for a while. तो arouse सही है, aroused my interest, क्योंकि जगाना होता है ना. It has caught my interest नहीं होगा, it's not making sense. Captured my attention होता है. सर अराउज्ड तो नेगेटिव आप के caught लिए लगा कभी रहे यूज नहीं हो होता. ना, आप क्या कर रहे हो ना, जो caught लगा रहे हो ना, आप इसको attention को देख के लगा रहे हो. एक्चुअली वो भी गलती बहुत बार करते हैं हम लोग. You have caught my attention, you have caught my this, but when you are interest जो होता है ना, his talk on his side actually aroused me, because aroused में जगाना होता है. तो बंदे में इंटरेस्ट रहा होगा, बट तो सोया रहा होगा, क्योंकि बंदा आया. अब कॉन्टेक्स्ट भी देखो, कॉन्टेक्स्ट भी आपको हेल्प करेगा. हिज टॉक ऑन हेरिटेज साइट्स हैज अराउज्ड माय इंटरेस्ट. दैट बेसिकली मींस दैट दिस गाय केम, ही टॉक्ड ऑन हेरिटेज साइट. इसके बंदे में इंटरेस्ट डेवलप हुआ या जगा होगा. दैट्स व्हाई ही सेज अराउज्ड माय इंटरेस्ट. You catch someone's imagination or you catch someone's attention rather than interest. Attention सही होगा, imagination भी सही होगा, but interest arouse हो जाता है. This is correct. I think aroused ही होना चाहिए. इसका आंसर क्या होगा? He was having a difficult time, but इसका concept है एक, मैं जो बताऊंगा आपको. When you use a negative adverb, you have to put the word first and then the, but not once did he आएगा, did he complain, ऐसा आएगा ये. तो एक्चुअली इसमें रूल क्या है? I will go through all these questions and I will take a session again. But negative adverb at the start of a sentence means क्या आएगा? पहले helping verb, ठीक है, पहले helping verb आता है, फिर subject आता है, और फिर main verb आता है. कैसे? एग्जाम्पल दूंगा मैं. Not even once did he call me. और आपको एग्जाम्पल देता हूं. Rarely did we talk to him. ठीक है, ये सही लग रहा है. Rarely we did talk to him. सही कौन सा लग रहा है?
If you go, पहला सही लगता है ना, क्यों मालूम है? एक तो रेयरली हो रहा है, ऊपर से आप बोल रहे हो वी डिड टॉक टू हिम, तो ये रेयरली मतलब दिखाता है कि अक्सर नहीं होता था, और ये वी डिड टॉक टू हिम मतलब ये दिखा रहा है कि आप बात करते थे। तो ये कॉम्बिनेशन जो है ऑकवर्ड हो जाता है, बिकॉज हाउ डिड when you talk when you did talk to him, that means you are emphasizing, then how that can thing be rarely? That's why rarely did we talk to him. So rarely a negative है ना, ये नेगेटिव का मतलब क्या होता है? रेयरली, सेल्डम, नेवर और नॉट इवन वंस, ये सब नेगेटिव है, एडवर्ब्स हैं ये। तो नेगेटिव एडवर्ब जब आता है तो पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया, फिर सब्जेक्ट आया और फिर मेन वर्ब आया। यस और नो? यस सर। ये रूल है, बहुत लोगों को हवा ही नहीं है रूल का। नेगेटिव एडवर्ब मींस व्हाट? हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब। जैसे कई बार क्या होता है, लोग अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं तो वो दिखाते हैं यार हमारे नेबर्स बहुत इंडिफरेंट है, बहुत ही सेल्फिश हैं। 2 weeks ago my baby was crying the whole night. Everyone could hear, but not even for once did they come out and ask what the problem is. Not even for once did they come out and ask. ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। उस तरह का होता है ये रूल यार। अभी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना तो इसकी थ्योरी बनेगी, बिकॉज ये किसी चैप्टर में नहीं आता है, ये बेसिकली एक यूसेज का रूल होता है। तो आप नेगेटिव एडवर्ब शुरू करोगे तो इस तरह से आप लिखोगे, तो यू कैन कीप द नुएंसेस इन माइंड। इसमें 2 ऑप्शन में से आप फंस जाते हैं। नेक्स्ट क्या आएगा? ये तो हो गया, ये क्या होगा, ये क्या? अच्छा ये पैराजम्बल हो गया। तो कितने क्वेश्चन आ गए वहां से? 5 क्वेश्चन वहां से आ गए। ये बेसिकली पैराजम्बल है, जिसमें आप शुरू का सेंटेंस या बीच का सेंटेंस या एंड का सेंटेंस निकाल रहे हो, एंड देन अगेन यू कम बैक टू फिल इन द ब्लैंक्स। सो यू विल फाइंड दैट द एंटायर पेपर इज डोमिनेटेड बाय वर्बल एबिलिटी, vocabulary, idioms, phrases, grammar. So we should spend a good amount of time doing these kind of things, at least partially. जैसे इसका क्या लग रहा है आंसर? 29th का आंसर क्या होगा? Use your common sense. Tell me what do you think is the answer for the 29th question? Please try. The beauty of Dash is that it poses thought-provoking questions. Sir, A, philosophy, ourselves, pondering, understanding. Deeply about ourselves. हाँ तो सही है ना, deeply about Dash and life in general. तो life in general है तो आपकी बात हो रही है ना. Further, pondering about the ideas. हाँ बिल्कुल can help us again to get a better understanding. Easy, A easy है ना? टफ लग रहा है क्या? हाँ सर, लाइफ के बारे में कोई और तो बात करेगा, लिंग्विस्टिक हिस्ट्री वगैरह। 20 सेकंड का काम है ये। लोग पता देख के डर जाएंगे, बोलेंगे अरे यार क्या आ गया, ये तो 3-3 4-4 ब्लैंक है, नहीं होगा मेरे से। बहुत लोग पता है क्या करते हैं? दे जज द बुक बाय इट्स कवर। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक वी मेक इन लाइफ। वी ऑफ्टन जज द बुक बाय इट्स कवर। क्वेश्चन छोटा सा है, आप आराम से आपने उसको बड़ा राय का पहाड़ बना के छोड़ ही दिया, देखा भी नहीं कि उसमें है क्या। So don't ever make the mistake of judging things superficially. At least go into it. इसको पढ़ने के लिए कितना टाइम लगता है? अगर नहीं समझ में आता तो एनीवे छोड़ देते आप, बट कम से कम देख के छोड़ देना इज लाइक मिसिंग अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। 30th का ट्राई करो। सर A ही होगा। ओके, कुछ किसने कहा ए ही होगा? ओके, every day more than 1 billion promotional messages are sent in that are commercial and dash. Okay, कुछ भी हो सकता है। Although dash have used more technology to stop this. कौन यूज करेगा? सर सी नहीं हो सकता इसका ज्यादा अच्छा आंसर? यार कुछ क्वेश्चन इनके बड़े घटिया भी होते हैं, पता है। सर स्टॉप कर रहे हैं तो सर हम इंफॉर्मेटिव या एजुकेशनल मैसेज को कोई स्टॉप नहीं करेगा, तो इस वजह से एक्चुअली इसको होगा अनसॉलिसिटेड।
I will tell you. I will सर tell you. फर्स्ट वाला होगा, You know स्पैमर्स भी आ रहे हैं। you know what is unsolicited? हाँ सर पता है सर। तब बिना मांगे आ गया। बिना मांगे। तो भाई अब जब बिना मांगे आ रहा है तो मेरी मर्जी का उल्लंघन हो रहा है ना। मुझे तो मैं चाहता हूँ, जैसे बैंक के आते हैं तो मैं बोलता नहीं नहीं यार जरूरी है, कल पैसा कोई निकाल के क्या। बट इनएस्केपेबल क्या होगा, आप एस्केप कर ही नहीं सकते उससे, तो उसकी रेगुलेशन की क्या फायदा। कैन आई से बी इज डेफिनेटली गोइंग आउट। जो चीज इनएस्केपेबल होती है उसका क्या टेक्नोलॉजी, उसका क्या रेगुलेशन, उसका क्या फायरवॉल। डिड यू अंडरस्टैंड दैट बी हैज टू गो आउट। यस सर। इंफॉर्मेटिव होगा। हाँ देखो इंफॉर्मेटिव मेरे को है ना, प्रोमोटर्स अथॉरिटीज से दिक्कत नहीं, मेरे को इन्फॉर्मेटिव से दिक्कत हो जाती है। अनसॉलिसिटेड एंड इंफॉर्मेटिव, अनसॉलिसिटेड इज नेगेटिव इन कॉनोटेशन। आप तो एक तरह बोल रहे हो कि ये प्रमोशनल है, ठीक है, फिर आप उसको इंफॉर्मेटिव बोल दो, को ये समझ में नहीं आता यार ये प्रमोशनल है इंफॉर्मेटिव, ये तो क्लियर हो जाओ। तो आप लॉयर हो, आपने शुरू किया केस पढ़ना, पहले तो आपने प्रमोशनल यूज किया, फिर आप उसको बोल रहे हो इंफॉर्मेटिव भी है। देखो प्रमोशनल है इसका मतलब है कि अनसॉलिसिटेड गोज वेरी वेल विद इट, बट इफ इट इज एजुकेशनल इन्फॉर्मेटिव देन व्हाई शुड आरबीआई का मैसेज आ रहा है कि ओटीपी मत दो किसी को। डोंट डू यू थिंक इट इज अनसॉलिसिटेड, इज इट इन्फॉर्मेटिव और इज इट एजुकेशनल। तो आप बोलोगे सर आरबीआई का मैसेज अगर आता है कि ओटीपी मत शेयर करो किसी के साथ, तो उसको तो मैं एजुकेशनल इन्फॉर्मेटिव में डालूंगा ना। Are you getting my point? So when you say that informative and educational, you are creating a paradox in your own ideas, in your own sentence. Yes or no? सबको समझ में आ रहा है? यस सर। Clear to everyone? So Yes, the sir. answer is yeah, yeah. ठीक है। मोटा मोटी देखोगे तो यार ये सब जो है ना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट खाली प्रैक्टिस। अपन मैं क्या करूंगा ना, कुछ जीआरई के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कराऊंगा बहुत सारा, तो आपसे आइडियाज लग जाएगा कैसे करते हैं। विजुअली डैश, विजुअली स्ट्रॉन्ग डैश फिल्म्स ऑफ द 2020s आर डैश प्रिजर्व्ड एंड सफर फ्रॉम सेंसरशिप कट्स लीडिंग डैश। ठीक है, तो क्या लग रहा है आपको, विजुअली स्ट्रॉन्ग डैश फिल्म्स ऑफ 2020s कैसे होगा, साइलेंट ही होगा ना। कौन सा वर्ड है जो आंसर निकाल देगा। सफर कोई कर रहा है तो उसकी प्रिजर्वेशन कैसी रही होगी, पुअरली होगा ना या फिर बैडली होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अगर वो सफर कर रहा है, आर डैश प्रिजर्व्ड एंड सफर फ्रॉम सेंसरशिप कट्स, तो डैश प्रिजर्व्ड है एंड दे सफर फ्रॉम समथिंग, दैट मींस ये भी नेगेटिव ही होना चाहिए, तो उसने एंड यूज किया है ना। अगर ये पॉजिटिव होता और ये होता नेगेटिव तो फिर ये बट यूज करता। The fact that you have used the word and means that this idea and this idea are both negative. So they are suffering from censorship cuts. And one more suffering is that they are either badly preserved or they are poorly preserved. Yes or no? Can I say misconception hai, na ki accusation hai? Tell me yes or no. Misconception hai ya accusation hai? Misconception. देखो एक्विजिशन क्या होता है, किसी पे आप इल्जाम लगा रहे हो, तो प्रॉब्लम क्या है, एक तो उसको बैडली प्रिजर्व करते हो, ऊपर से उसमें बहुत सारा सेंसर का कट है, तो लोगों में ये गलत कंसेप्शन आता है कि शायद हो सकता है कि ये पुराने टेक्नोलॉजी से बना इसलिए ऐसा है। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन, यस और नो। सर सी भी तो हो सकता है, ऑब्जर्वेशन भी तो आ सकता है। देखो ऑब्जर्वेशन जो होता है ना वो ध्यान से देखने वाला चीज होता है ना। ऑब्जर्वेशन जो होती है ना वो बहुत ध्यान से, बहुत इंटेलिजेंट वो है। तो प्रॉब्लम ये होता है कि
ठीक है, आप बोलोगे कि भाई लीडिंग टू द डैश दैट दे वर प्रिमिटिव एंड barely watchable. आपको लगता है कि अगर वो ऑब्जर्वेशन है अच्छा उसका, तो जो कॉज है उसको पकड़ नहीं पाएगा वो। कॉज क्या है कि उनमें सेंसरशिप कट्स हैं और उनका बैडली प्रिजर्व्ड है। तो अगर वो रियल रीजन है और ये बंदा अगर ऑब्जर्वेशन है कर रहा है, तो कहना ऐसे वो ऑब्जर्वेशन गलत करेगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस और नो? यस सर। एक तो आपने बोला कि भाई यस वो सर। गड़बड़ कुछ और हो रहा है, ऑब्जर्वेशन क्या आ रहा है। ऑब्जर्वेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड राइट, अ मिसकंसेप्शन इज नेगेटिव। तो गलती है कि वो पोरली प्रिजर्व है, गलती है कि उसमें सेंसरशिप कट है, प्रॉब्लम वो है। लेकिन लोग क्या समझ के बैठे हैं कि टेक्नोलॉजी पुरानी थी इसलिए ये ऐसा है। मिसकंसेप्शन। एवरीवन क्लियर? यस सर। आगे बढ़े। नेक्स्ट 30 सेकेंड, प्लीज टेल मी। ये भी इंटरेस्टिंग है, बन जाएगा मुझे लग रहा है। कैन आई से स्पेस एक्सप्लोरेशन होगा प्राइमरीली, एंड यू कैन यस ट्राई सर। दिस। देखो क्या होता है ना कि आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप ट्राई करो एक हिस्सा पढ़ने का। उसमें से एक वर्ड अगर फिट हो रहा है तो उसको ट्राई करो कि ये पूरा ऑप्शन फिट होना चाहिए। अचीविंग स्पेस फ्लाइट एनेबल्ड ह्यूमंस टू बिगिन टू एक्सप्लोर। देखो ये एक्सप्लोर होगा ना, तो यहाँ पे एक्सप्लोरेशन आना बहुत हाई चांस है। देखो क्या होता है ना कि समटाइम्स वी रीड एंड देन वी फाइंड द ऑप्शन, समटाइम्स वी यूज द ऑप्शंस इंटेलिजेंटली टू सेव टाइम। Achieving space flight enabled humans to begin to explore the solar system and the rest of the universe, to understand the many objects and phenomena that are better observed from space perspective and to use for human benefit. ठीक है, all of these activities go and the dash and the application of that understanding बिल्कुल are. Yes, it makes perfect sense. I will not go to any other option. Yes or no? Space identification, बाप रे। वास्टनेस की जरूरत क्या है, वो तो टेलीस्कोप से आपको मिल जाएगा। एक्सप्लोर का मतलब होता है कि खोद के देखना। वास्टनेस के लिए तो आप यहाँ बैठो, लगाओ टेलीस्कोप, हो गया काम, फिजिकल इक्वेशन से मालूम पड़ जाएगा आपको। बट द फैक्ट दैट यू आर टेकिंग फ्लाइट मीन्स दैट यू वांट टू एक्सप्लोर। एवरीवन अग्रीज दैट डी इज द आंसर। यू कुड हैव taken a very short route by looking at one of the blank and trying to fit it in. Everyone clear? Next question ले लो फटाफट, 33rd वाला। सर बी। बी? बाकी लोगों को क्या लग रहा है? मुझे पता नहीं, मैं देखूंगा बताऊंगा। फोर्थ लग रहा है। They have that they had leaked confidential, that they had leaked, that he had leaked confidential associated profit dash from the profit treacherously होता है। What is treacherous? सी ऑप्शन। देखो प्रॉफिट एनॉर्मसली हो सकता है, प्रॉफिट ड्रामेटिकली भी हो सकता है, प्रॉफिट illicitly, यार थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है ये। द इन्वेस्टिगेटर्स हैव डैश, एक मिनट है, एक मिनट। द इन्वेस्टिगेटर्स हैव डैश दैट ही हैड लीक्ड। इन्वेस्टिगेटर्स है ना, तो अक्यूज होगा या एलिज्ड होगा, अनाउंस्ड होगा या डिस्कवर्ड हो सकता है। कॉन्फिडेंशियल है तो फिर इंटरनेट की कॉन्फिडेंशियल जरूरत, कह रहे हैं इनसाइडर होती है कॉन्फिडेंशियल है तो इंटरनेट की जरूरत नहीं है। लेट्स गो सर, वन बाय इनसाइडर वन। होती है ना। कैन आई से दिस इज इनसाइडर।
हाँ मतलब इंटरनल मेरे को सही नहीं लग रहा है, इनसाइडर हो सकता है। सर वो इनसाइडर ट्रेडिंग होती है ना स्टॉक मार्केट में, हाँ राइट जो राइट राइट, आई एग्री कॉन्फिडेंशियल। विद दैट। हाँ, दैट ही लीक कन्फिडेंशियल इनसाइडर इंफॉर्मेशन और द एक्विजिशन देयर बाय। एक मिनट, हेलो। तो पहले एक और सेशन है 9:30 से, ठीक है। एनीवेज द इन्वेस्टिगेटर्स हैव डैश दैट हैव discovered that he leaked confidential insider information about the acquisition, thereby allowing associates to profit illicitly from the deal. Allowing सर associates. वैसे डिस्कवर्ड भी इनएक्यूरेट वर्ड लग रहा है ना, मतलब डिस्कवर कोई चीज होती है, मतलब ये Discovered तो नहीं मतलब होता, discovered that नहीं है ना। होता। हाँ जी। They could be alleged, देखिए alleged। मुझे पता है गड़बड़ कहाँ लग रहा है, मुझे लग रहा है कि allowing associates to profit illicitly, तो illicitly तो हो सकता है। treacherous सर treacherous इलिसिटली ऐसे हो सकता है क्योंकि गलत उससे क्योंकि इनसाइडर इन्फॉर्मेशन हाँ, थी तो illicit गलत। जो है वो सही है। illicit जो है वो इसलिए होता है क्योंकि आपने इलीगल किया है। ट्रेचरसली में क्या होता है ना, आपने किसी का ट्रस्ट तोड़ा है। इट इज मोर ऑन द मॉरल साइड। देखो, जब आप बिजनेस करते हो शराब बेच के, तो आप ट्रेचरस नहीं हो, आप इलिसिट हो, क्योंकि आपने किसी पर्सनल बंदे का आपने ट्रस्ट नहीं तोड़ा है। ट्रेचरी इज विथ रेस्पेक्ट टू बिट्रेयल। नाउ द प्रॉब्लम इज लीकिंग ऑफ इंफॉर्मेशन कैनॉट बी कॉल्ड एज समथिंग ऑफ अ बिट्रेयल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यू माइट, बिकॉज यहाँ पे किसी का कोई मॉरल एलिमेंट है, लीगल एलिमेंट है एक्चुअली। So leaking confidential information could be considered as illegal, but pressure has becomes a very big word for this kind of a situation. So I would definitely rule out A and D. मेरे को लग रहा है दोनों में से होगा, accused alleged होगा या फिर accused होगा। Insider है, important है, इसलिए I think the answer should be B. I'm not very sure about it though. Investors have alleged that he had leaked confidential insider information. Why alleged? Because उन्होंने ये कहा है कि भाई this is the probability. When you allege something means it is yet to be finalized by the court of law. तो investigators हैं, उन्होंने किया है, तो they have alleged that. सही सही लग रहा है, सही लग रहा है, यही होना चाहिए, बट आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट। सर ठीक है, इम्पोर्टेंट वो कॉन्फिडेंशियल इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन कुछ मतलब सेंस सा नहीं बना रहा। नहीं मुझे ना एक्चुअली इंपॉर्टेंट भी गलत लग रहा है, थोड़ा मेरे को ना एक्यूज भी सही नहीं लग रहा है एक्चुअली। कॉन्फिडेंशियल और इम्पोर्टेंट सेम हो गया, हो जाएगा। Zara accused is wrong actually here. The investigators have accused that he had leaked. Accusations क्या होते हैं ना, they have alleged that they have leaked. देखना पड़ेगा यार, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है मुझे। We have to understand what exactly, but ठीक है, this can be a close call question. 9:30 से एक और क्लास है, तो अपन क्विकली इन एंड जल्दी लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इसके बाद में वर्ड यूसेज है, तो ये अपन बाद में ले लेंगे। बट व्हाट वन पिक्चर इज वेरी क्लियर, दैट वर्बल एबिलिटी एंड वोकैबुलरी डोमिनेट्स द पेपर नाउ. So you cannot escape from vocabulary, idioms, phrases, and word usage and all. So the more we solve questions like these, the better we would become at it. Question, last question क्या लग रहा है? In an anthropocentric dash, animals are no more property. There was the concept of humane treatment and necessary dash are economic in nature. The idea that killing animals is not a serious issue as long as animals are not made to suffer rests. In an anthropocentric dash worldview, हो सकता है, animals are no more than property to human beings. Therefore, the concepts of human treatment and necessary
नेसेसरी सफरिंग नहीं होगा, नेसेसरी ह्यूमन ट्रीटमेंट के साथ क्या जाएगा, इससे आंसर आएगा। ह्यूमन ट्रीटमेंट एंड नेसेसरी कंफर्ट है ना, बिकॉज गेन का नहीं है, बिकॉज ह्यूमन ट्रीटमेंट, द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन ट्रीटमेंट इज वन आइडिया एंड देयर हैज टू बी अ सिमिलर आइडिया इज इकोनॉमिक इन नेचर, द कॉन्सेप्ट ऑफ, या फिर वो हो सकता है गेन कंफर्ट या फिर वेलबींग हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम लेते हैं इसको हम लोग, ठीक है, देयर इज अ क्लास एट 9:30, so we'll continue our discussion next time from here, ठीक है। But the entire thing is dominated by vocabulary, because if you go further below, word usage questions आ जाते हैं, बहुत सारे हैं actually, and then you have parajumbles towards the end. तो 41, 42, 43, 44 and 45, किसी में 5 पैराजम्बल है, किसी में 4 है, लास्ट वाले में 4 है, 2 में 5 है और एक में, ठीक है, got it. So you have basically parajumbles which we have done, and the rest is all vocabulary, and apart from that grammar and ये क्या बोलते हैं RC. So ये 4-5 चीज, ग्रामर ही बहुत तुच्छी ग्रामर, ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा ग्रामर है। Clear to everyone, because it is a very well manageable paper. अगर आपकी vocab अच्छी है ना तो पेपर बढ़िया निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। So we'll continue this next time. We'll just take the other things, या फिर हम vocabulary करेंगे निकाल के अलग से, ठीक है। That's all for today, people. I will share the recording link. Okay, sir. Thank you, sir. Okay, sir. ठीक है।